رات کے وقت اسلام آباد کو دیکھیں تو یہ شہر بظاہر بالکل خاموش نظر آتا ہے، لیکن اسی خاموش شہر میں پاکستان کی سیاست کے وہ فیصلے ہوتے ہیں جو آنے والے کئی سالوں کا راستہ بدل دیتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی عمارت، وزیر اعظم ہاؤس، سیاسی جماعتوں کے دفاتر اور طاقت کے وہ مراکز جہاں فیصلے ہوتے ہیں، ان سب کے درمیان آج ایک سوال بہت اہم ہے۔ اگر آنے والے وقت میں پاکستان کو ایک نئی سیاسی قیادت کی ضرورت پڑی تو اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ اور اگر اس دوڑ میں دو نام سامنے آئیں، ایک مریم نواز اور دوسرا بلاول بھٹو زرداری، تو ان دونوں میں سے کس کے پاس اسلام آباد تک پہنچنے کا زیادہ مضبوط راستہ ہوگا؟ یہ سوال صرف آج کی سیاست کا سوال نہیں ہے، کیونکہ مریم نواز اور بلاول بھٹو دونوں کی کہانی آج سے شروع نہیں ہوتی۔ ان دونوں کے پیچھے پاکستان کی سیاست کے دو بڑے خاندان کھڑے ہیں۔ ایک طرف شریف خاندان ہے جس نے پاکستان کی سیاست میں کئی دہائیوں تک اہم کردار ادا کیا، اور دوسری طرف بھٹو خاندان ہے جس کا نام پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک الگ ہی مقام رکھتا ہے۔ لیکن تاریخ کا سب سے دلچسپ حصہ یہ ہے کہ اب پہلی بار یہ دونوں خاندان اپنی اگلی نسل کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف نواز شریف کی بیٹی مریم نواز ہیں اور دوسری طرف بے نظیر بھٹو کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری ہیں۔ دونوں کے پاس نام ہے، دونوں کے پاس سیاسی جماعت ہے، دونوں کے پاس ووٹرز ہیں، لیکن وزیر اعظم بننے کے لیے صرف نام کافی نہیں ہوتا۔ پاکستان کا آئین بہت صاف بات کرتا ہے۔ وزیر اعظم قومی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت سے منتخب ہوتا ہے، یعنی وزیر اعظم بننے کی آخری منزل کسی جلسے میں نہیں، کسی ٹی وی پروگرام میں نہیں، اور صرف سوشل میڈیا پر بھی نہیں ہوتی۔ اصل فیصلہ قومی اسمبلی کے اندر ہوتا ہے۔ جس شخص کے پاس مطلوبہ تعداد میں ارکان کی حمایت ہو وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ اسی لیے مریم نواز اور بلاول بھٹو کی اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی مقبولیت سے زیادہ ان کی سیاسی طاقت، ان کی جماعتوں، ان کے علاقوں اور مستقبل کے اتحادوں کو دیکھنا ہوگا۔ مریم نواز کی سیاست کو سمجھنے کے لیے ہمیں نواز شریف کے دور تک واپس جانا پڑے گا۔ شریف خاندان کی سیاست نے خاص طور پر پنجاب میں ایک مضبوط سیاسی بنیاد بنائی۔ نواز شریف کئی مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں طویل عرصے تک اپنی سیاسی طاقت قائم رکھی، اور یہی سیاسی وراثت آگے چل کر مریم نواز تک پہنچی۔ لیکن مریم نواز کے لیے صرف نواز شریف کی بیٹی ہونا کافی نہیں تھا۔ انہیں خود میدان میں آنا تھا، لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا تھا، اور یہ بات ثابت کرنا تھی کہ وہ صرف ایک سیاسی خاندان کی وارث نہیں بلکہ خود بھی ایک سیاسی کردار رکھتی ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم نواز نے مسلم لیگ نون کی سیاست میں ایک نمایاں کردار اختیار کیا۔ ان کی تقریریں، ان کی سیاسی مہم اور پارٹی کے بیانیے میں ان کی موجودگی نے انہیں آہستہ آہستہ ایک اہم سیاسی چہرہ بنا دیا۔ لیکن ان کی اصل آزمائش اس وقت شروع ہوئی جب انہیں پنجاب کی حکومت ملی۔ 26 فروری 2024 کو مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی، اور وہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے والی شخصیت بن گئی۔ یہ مقام اس لیے اہم ہے کیونکہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور پاکستان کی وفاقی سیاست میں پنجاب کی سیاسی طاقت ہمیشہ بہت اہم رہی ہے۔ کسی شخص کے پاس پنجاب کی حکومت ہو تو اس کے پاس صرف ایک سرکاری عہدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس ایک بڑے صوبے کی انتظامیہ، سیاسی کارکنوں، ترقیاتی منصوبوں اور عوامی توقعات کو سنبھالنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ یہی تجربہ مستقبل میں کسی بھی سیاستدان کے لیے بہت بڑا سیاسی سرمایہ بن سکتا ہے۔ مریم نواز کے لیے بھی یہی سب سے اہم مرحلہ ہے، کیونکہ اگر وہ پنجاب میں اپنی حکومت کو مضبوط سیاسی کارکردگی میں بدلنے میں کامیاب ہوتی ہیں تو ان کے لیے وفاق کی سیاست میں آگے بڑھنے کا راستہ مزید مضبوط ہو سکتا ہے۔ لیکن اسی وقت پاکستان کی دوسری سیاسی سمت میں ایک اور کہانی چل رہی ہے۔ یہ کہانی بلاول بھٹو زرداری کی ہے۔ بلاول بھٹو کا نام پاکستان کی سیاست میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے، بے نظیر بھٹو کے بیٹے اور آصف علی زرداری کے صاحبزادے ہیں۔ ان کے نام کے ساتھ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے کئی بڑے کردار جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی والدہ بے نظیر بھٹو 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم رہی۔ ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم اور صدر رہ چکے تھے، اور ان کے والد آصف علی زرداری صدر پاکستان رہ چکے ہیں اور اس وقت بھی موجودہ پاکستان کے صدر ہیں۔ اس لیے بلاول جب سیاست میں آئے تو ان کے پاس صرف
एक पार्टी नहीं थी, इनके पीछे एक पूरी सियासी तारीख थी। लेकिन यहाँ भी असल सवाल यही था कि क्या बिलावल सिर्फ उस तारीख के वारिस बनेंगे या अपनी अलग सियासी शनाख्त भी बनाएंगे। बिलावल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली और वक्त के साथ कौमी सियासत में अपना किरदार बढ़ाया। वो कौमी असेंबली के रुकन रहे, वफाकी हुकूमत में वजीर खारजा रहे और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की। आज वो कौमी असेंबली में NA 194 लाड़काना 1 से रुकन है और PPP से वाबस्ता है। यहाँ मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के सियासी रास्ते एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आते हैं। मरियम नवाज इस वक्त पंजाब की हुकूमत चला रही हैं, जबकि बिलावल भुट्टो की सियासत का बड़ा हिस्सा वफाकी और कौमी सतह पर नजर आता है। एक के पास सूबाई हुकूमत का तजुर्बा है और दूसरे के पास वफाकी सियासत और खारजा अमूर का तजुर्बा है। यही फर्क मुस्तकबिल में दोनों के लिए ताकत भी बन सकता है और कमजोरी भी। अब जरा दुनिया की सियासत पर नजर डालें। अमेरिका में बुश खानदान की 2 नस्लें सदर के मनसब तक पहुंची। भारत में नेहरू गांधी खानदान ने कई दिहाइयों तक मुल्की सियासत पर असर रखा। पाकिस्तान में भुट्टो खानदान और शरीफ खानदान ने भी नस्ल दर नस्ल सियासत में अपना असर कायम रखा। लेकिन इन तमाम मिसालों में एक बात मुश्तरक है। खानदानी नाम किसी शख्स को सियासत में दाखिल होने का रास्ता दे सकता है, लेकिन इक़्तिदार में बरकरार रहने के लिए हर नस्ल को अपनी सियासी ताकत खुद बनाना पड़ती है। और यही असल मुकाबला मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के दरमियान है। मरियम नवाज के सामने सवाल ये है कि क्या वो अपने वालिद की सियासी वरासत को अपनी जाती सियासी ताकत में बदल सकती है? क्या वो पंजाब में ऐसा सियासी असर कायम कर सकती हैं जो मुस्तकबिल में पूरे पाकिस्तान में इनके लिए रास्ता बनाए? और क्या मुस्लिम लीग नून आने वाले वक्त में इन्हें अपनी कौमी क़यादत के तौर पर आगे बढ़ाएगी? बिलावल भुट्टो के सामने सवाल मुख्तलिफ है। इनके पास भुट्टो नाम की बड़ी सियासी ताकत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की मजबूत बुनियाद है और वफाकी सियासत का तजुर्बा भी है। लेकिन अगर इन्हें वजीर आजम बनना है तो सिर्फ सिंध की ताकत काफी नहीं होगी, इन्हें अपनी जमात को मजीद सूबों तक ले जाना होगा। कौमी सतह पर ज्यादा वोट हासिल करने होंगे और ऐसी सियासी सूरत हाल बनानी होगी जिसमें दूसरी जमातें भी इनके साथ हुकूमत बनाने पर तैयार हो। यहाँ पाकिस्तान की सियासत का सबसे अहम असूल सामने आता है। वजीर आजम बनने के लिए सिर्फ मकबूल होना काफी नहीं, अक्सरियत बनाना जरूरी है। यही वजह है कि इंतखाबात के बाद असल खेल अक्सर इंतखाबात के दिन खत्म नहीं होता। असल खेल इसके बाद शुरू होता है। कौन किसके साथ हुकूमत बनाएगा, कौन किस जमात को साथ मिलाएगा, कौन किस सूबे में अपनी ताकत बढ़ाएगा, कौन अपने मुखालिफ को इत्तेहादी बनाने में कामयाब होगा, और सबसे अहम बात, कौमी असेंबली में किसके पास वो तादाद होगी जो वजीर आजम बनने के लिए जरूरी है। पाकिस्तान की हालिया सियासत भी हमें यही दिखाती है। सियासी जमातें एक दूसरे की मुखालिफ भी होती हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के साथ हुकूमत भी बनाती हैं। इसलिए आज का सियासी मुखालिफ कल का इत्तेहादी बन सकता है और आज का इत्तेहादी कल का मुखालिफ भी हो सकता है। इसीलिए अगर हम मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के मुस्तकबिल को देखें तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि आज कौन ज्यादा ताकतवर है, हमें ये देखना होगा कि अगले इंतखाबात कौन अपनी ताकत को बढ़ा पाता है। मरियम नवाज के पास इस वक्त एक बहुत अहम चीज है और वो है अमली हुकूमत का तजुर्बा। वो पंजाब की वजीर आला हैं और इनके फैसलों का बराह रास्त असर एक बहुत बड़ी आबादी पर पड़ता है। अगर इनकी हुकूमत आवाम को ये महसूस कराने में कामयाब होती है कि सूबे में तब्दीली आ रही है और हुकूमत नताइज दे रही है तो ये इनके लिए मुस्तकबिल में एक मजबूत सियासी दलील बन सकती है। लेकिन अगर हुकूमत की कारकर्दगी अवामी तवक्कुआत पूरी ना कर सकी तो यही ओहदा इनके लिए सियासी बोझ भी बन सकता है। बिलावल भुट्टो के पास दूसरी तरफ एक मुख्तलिफ मौका है। इनके पास वफाकी सियासत का तजुर्बा है और वो पाकिस्तान को बैरून मुल्क रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अगर वो अपनी सियासत को सिर्फ भुट्टो खानदान की याद तक महदूद रखने के बजाय नौजवान नस्ल, मईशत, रोजगार, खारजा पॉलिसी और कौमी मसाइल के साथ जोड़ने में कामयाब होते हैं तो वो अपनी एक अलग सियासी शनाख्त बना सकते हैं। और अगर पीपल्स पार्टी सिंध से निकलकर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अपनी सियासी जगह बढ़ाती है तो बिलावल के लिए वजीर आजम की दौड़ बहुत ज्यादा संजीदा हो सकती है। लेकिन यहाँ एक और बात बहुत अहम है। पाकिस्तान की सियासत में वक्त सबसे बड़ा खिलाड़ी है। आज की सियासी ताकत कल वैसी नहीं रहती। हुकूमतें बदलती हैं, इत्तेहाद बदलते हैं, आवाम की तरजीहात बदल जाती हैं और कभी कभी एक वाक़या पूरी सियासी सूरत हाल बदल देता है।
इसीलिए आज किसी एक शख्स के बारे में यह कहना कि वो लाजमन अगला वजीर आजम होगा, सियासी हकीकत से ज्यादा एक अंदाजा होगा। लेकिन अगर सिर्फ मौजूदा सियासी पोजीशन देखी जाए तो मरियम नवाज का रास्ता इस वक्त ज्यादा वाज़ेह नजर आता है। इनके पास पंजाब की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की सियासी मशीनरी है और एक बड़े सूबे में बराह रास्त हुकूमत करने का तजुर्बा है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो के पास कौमी सियासत का तजुर्बा, पीपल्स पार्टी की तारीखी ताकत और सिंध में मजबूत सियासी बुनियाद मौजूद है। कौमी असेंबली के मौजूदा रिकॉर्ड में पीपल्स पार्टी के पास 74 नशिस्तें दर्ज हैं, जबकि बिलावल खुद NA 194 से रुकन है। इसलिए अगर आज सिर्फ दोनों के रास्तों को देखा जाए तो मरियम नवाज के पास वजीर आजम हाउस तक पहुंचने का रास्ता ज्यादा सीधा दिखाई देता है। लेकिन बिलावल भुट्टो की कहानी खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ इंतखाबात, इत्तेहादों और हालात पर मुनहसर होता है और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। मरियम नवाज के पास अपने खानदान की सियासी विरासत को एक नई नस्ल की सियासत में बदलने का इम्तिहान है। बिलावल भुट्टो के सामने भुट्टो खानदान की तारीखी ताकत को एक नई कौमी सियासत में तब्दील करने का इम्तिहान है। एक के पास पंजाब है, दूसरे के पास सिंध की मजबूत बुनियाद है। एक के पास सूबाई हुकूमत का तजुर्बा है, दूसरे के पास वफाकी और सफारती तजुर्बा है। एक के पीछे शरीफ खानदान की सियासी मशीनरी है, दूसरे के पीछे भुट्टो खानदान की तारीखी शनाख्त और पीपल्स पार्टी का सियासी नेटवर्क है। लेकिन इस्लामाबाद की कुर्सी तक पहुंचने के लिए दोनों को एक ही इम्तिहान देना होगा, पाकिस्तान के अवाम का वोट और इसके बाद कौमी असेंबली के नंबर्स, क्योंकि आखिर में वजीर आजम वही बनता है जो ऐवान में अक्सरियत हासिल कर सके। तो अगर आज मुझसे पूछा जाए कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो में से अगला वजीर आजम बनने के लिए किसका रास्ता ज्यादा मजबूत है, मेरी छठी हिस्स जानती है कि इन दोनों में से वो कौन है जो अगला वजीर आजम बन सकता है। लेकिन मैं आप पे ये छोड़ता हूँ कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि सियासत में आज की बरतरी और कल की फतह के दरमियान बहुत बड़ा फर्क होता है। मुमकिन है मरियम नवाज पंजाब में अपनी हुकूमत को एक मजबूत कौमी सियासी कामयाबी में बदल दें। मुमकिन है बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी को सिंध से निकालकर दोबारा एक भरपूर कौमी जमात बना दें। मुमकिन है कि दोनों में से कोई एक दूसरी जमातों के साथ ऐसा इत्तेहाद बनाने में कामयाब हो जाए जो पूरा सियासी नक्शा बदल दे। और मुमकिन है कि आने वाले बरसों में कोई तीसरा नाम अचानक इस दौड़ में सबसे आगे निकल आए। लेकिन एक बात यकीनी है, पाकिस्तान की अगली बड़ी सियासी जंग सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नहीं होगी। ये जंग नई नस्ल की सियासी क़यादत की भी होगी। एक तरफ मरियम नवाज होंगी, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी, और दोनों के पीछे खड़ी होंगी पाकिस्तान की सियासत की दो सबसे बड़ी सियासी विरासतें। अब देखना सिर्फ यह है कि आने वाला वक्त किसके नाम के साथ तारीख लिखता है, क्योंकि पाकिस्तान में वजीर आजम की कुर्सी सिर्फ विरासत से नहीं मिलती। विरासत आपको सियासत में दाखिल कर सकती है, लेकिन इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए अपनी ताकत खुद बनानी पड़ती है। और शायद आने वाले वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही होगा, मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो, आखिर इस्लामाबाद की अगली बड़ी कुर्सी पर कौन बैठेगा।